So, hello students, welcome to EduTap. And today we'll be discussing the ARD current affair. But what is special about today's class? We'll not only be discussing the ARD current affair, but we'll also discuss the relevant information about the particular current affair. So that you know कि current affair क्यों important है और current affair से related क्या क्या important है. Okay, so let's start our class. But before that, I have a very quick announcement for you all. So EduTap has recently launched a comprehensive guidebook for all the NABARD aspirants. So see guys, if you're preparing for NABARD examination, काफी सारे questions आते हैं. So first question that we get from the aspirant is NABARD करता क्या है? What is the role of NABARD? So in this particular guidebook you will get the answer of that particular question. NABARD का role क्या है? Function क्या है NABARD का? आगे अगर आप join करते हैं, what will be your role? Okay, so again, let's say now you're interested in NABARD organization. You want to know कि join कैसे करें. So this particular guidebook will lead you on that question too कि कैसे नाबार्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं. एग्जामिनेशन होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज रिलैक्सेशन का क्या सीन है. सो ऑल दोज क्वेरी विल बी आंसर थ्रू दिस अल्टीमेट गाइडबुक दैट यू कैन सी इन योर स्क्रीन. लेट्स से नाउ यू आर रेडी कि ठीक है मेरे को नाबार्ड का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, बट यू वांट टू नो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट शुड बी योर सोर्सेज. दीज आर द biggest hurdle. So this guidebook will provide you 6-step strategy for your NABARD strategy. Okay, and then it will also provide you definite sources to prepare for NABARD examination. Let's say आपका नाबार्ड में सिलेक्शन हो चुका है. नाउ यू वांट टू नो एज एन असिस्टेंट मैनेजर व्हाट विल बी योर रोल, जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी कितनी होगी, बाकी पर्क्स क्या है. सो दिस गाइडबुक विल प्रोवाइड यू आंसर ऑफ ऑल दोज क्वेश्चन. So in this particular single guidebook you are getting the answer of all the query that you have regarding the NABARD examination. So let's see कि ये guidebook आपको क्या दे रही है. Let's summarize it quickly. So first of all it is providing you the definite answer of all the queries that you have. काफी बार क्या होता है, we are whenever we are consulting 2 or 3 sources confused हो जाते हैं. ठीक है, एक source कुछ कह रहा है, दूसरा source कुछ कह रहा है, and that lead to wastage of time. So this guidebook will provide you definite answer as well as will save your time, because 30 pages की guidebook से you are getting the answer of all the questions that you have. Then it is also saving your effort. उसको आप एग्जामिनेशन में लगा सकते हैं. ओके, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर गाइड बुक इज दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू ऑल. व्हाट यू विल हैव टू डू, go check out the link in the description box, register yourself and download this particular guidebook. So this was about the guidebook, the ultimate guidebook for you all. So let's start our class now. So when we are discussing about the current affair, the first current affair is Aiba cluster from Aizawl, Mizoram has become the first cluster to be completed under the Shama Prasad Mukherjee Rural Mission. So इस पेज में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट याद करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द क्लस्टर, देन द डिस्ट्रिक्ट, देन द स्टेट, देन द नेम ऑफ द मिशन. सिंस इट इज द फर्स्ट क्लस्टर टू बी कंप्लीटेड, काफी सारे क्लस्टर हैं वो भी डिस्कस करेंगे. ओके, देन हुआ क्या है करंट अफेयर का, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईवॉक क्लस्टर में 48 प्रोजेक्ट्स थे जो कंप्लीट कर लिए हैं. ये देख सकते हैं, मिजोरम का मैप है. फ्रॉम देयर यू कैन सी दिस इज द आइजॉल district. Okay, this is the Aizawl district and here you can see Aibok is mentioned. Then you can see 11 villages थे. ठीक है, क्लस्टर को कंप्लीट करने के लिए these 48 projects were implemented in 11 villages where the population was 10,963. अगेन क्या इंपॉर्टेंट है, नाम, क्लस्टर का नाम एंड मिशन का नाम. Discussing about the mission that is important for your current affair, for your examination, we'll discuss it now. So first of all, जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं, that is your श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन. ये याद कर लेना है. The first line you can see, this particular line contain the most important information for your examination. First of all, talking about the ministry. Let's start from there. So ministry आपकी Ministry of Rural Development. Then the year जिसमें start हो रखी है, that is 2016. इसका मिशन का पूरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन. टैग लाइन, आत्मा गांव की, सुविधाएं शहर की. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मा, दैट इज सोल, and सुविधाएं means facility. That means you are getting the soul of the village is maintained and the facility of cities are provided. Then another app is there Geo Urban app is there for particular mission. ठीक है, इसके विजिलेंस के लिए, अर्बन मिशन के लिए Geo Urban app is there. Then taking a look at the name itself, because it's a urban mission, what does this particular word mean? See, when we are talking about urban, it is made up of 2 words, rural and urban. So what will happen in this particular mission, we will not disrupt
or destroy any kind of societal structure that is स्पेशल इन दी रूरल एरियाज. ठीक है, रूरल एरियाज का थोड़ा सा सोसाइटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है सिटीज के एरिया से, सो वी आर नॉट डिस्टर्बिंग दैट, बट वट विल डू द फैसिलिटीज दैट आर देयर इन दिस सिटीज. ठीक है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सर्विसेज जितनी भी है, कम्युनिकेशन, ओके, टेक्नोलॉजीज, दैट ऑल विल बी प्रोवाइडेड इन द विलेज एरियाज. ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. कंडीशन क्या क्या होती है फॉर द क्लस्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द अर्बन क्लस्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. इफ यू आर implementing this particular scheme in the plains, so वहाँ जो population है that should be your 25,000, but if you are implementing this particular scheme in the hilly, tribal or desert area, 5,000 to 15,000 people or the population should be there in the cluster of village. ठीक है, बहुत सारे विलेज हैं, लेट्स से 1,000 इसकी पॉपुलेशन है, 1,000 यहाँ की है, 2,000 यहाँ की है, 1,000 यहाँ की है, सो दैट कम्स अराउंड 5,000. सो लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ हिली एरिया, सो दैट विल बी maintained under one cluster. So when we talk about vision, what vision is saying कि हम चाहते क्या है इस मिशन से. ठीक है, क्या सोच के हमने इस मिशन को ला रखा है. सो क्लस्टर ऑफ विलेज क्या होगा, प्रिजर्व और नर्चर करेगा फॉर द एसेंस ऑफ द रूरल कम्युनिटी. ठीक है, पीपल आर समटाइम्स क्लोज, comparatively closer, the communities are close comparing it to urban areas. So and जो facilities हैं इनके लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए, द फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड दैट इज इंस्पायर फ्रॉम द अर्बन एरियाज. ओके, सो दैट इज द बेसिक विजन ऑफ दिस एंड द अर्बन विलेजेस. ओके, इनको कंप्लीटली हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं करने वाले हैं, रादर वील प्रोवाइडिंग द इनपुट ऑफ द सिटीज इन दिस पर्टिकुलर एरिया. एंड द स्पेशल थिंग इज दीज areas are particularly connected to some cities. जो cities के around village area होते हैं that we are targeting. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग जाओ जहाँ पे transportation के लिए कोई कुछ infrastructure नहीं है, that you are developing. No, cities के around जो villages होते हैं that we are targeting. In fact, the current affair that we are talking about, the village that we talk about, it is also Aibok village is also near Aizawl district. So Aizawl city जो है उसके around that cluster is there. That is why it completed its project. Okay, 48 project that we talked about. Talking about the objective, so objective है to stimulate the local economic development, of course, enhance basic services and create well planned urban clusters. Okay, so this is the basic objective. We have talked about the vision and the word itself. Okay, essence क्या है इस particular scheme के. Now moving to the fact of this particular scheme, so you can see 300 cluster अर्बन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंदर 300 क्लस्टर दैट वी आर टारगेटिंग और जो बन चुके हैं. ओके, इसको हमने 5 ईयर में सोचा था कि हम कंप्लीट कर लेंगे, बट अप्रूव कितने हो रखे, 298 क्लस्टर हैं, 2 क्लस्टर अभी वेट कर रहे हैं कंप्लीशन का. देन यू कैन सी अप्रूव डीपीआर कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितनी कवर हो रखी है, जीपी कितनी कवर हो रखे हैं. बट अगेन इफ यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन. बट कुछ भी पूछ सकते हैं, सो जस्ट टेक अ लुक एट द डिजिट्स. ओके, then talking about the fund, abhi tak you can see 2347 crore rupees, that much money has been used to create 300 cluster and completed one cluster too. ओके, जो आईबॉक क्लस्टर है दैट इज कंप्लीटेड इट्स अर्बन मिशन, वहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज कंप्लीट हो चुकी है. सो दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, यू कैन सी कृषिफाई इंटीग्रेटेड विद ई-नाम टू एक्सपैंड द रीच ऑफ द फार्मर एडवाइजरी सर्विसेज. सो कृषिफाई क्या है, ई-नाम, आई थिंक नाम तो सुन ही लिया होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड. अगर नहीं सुना है सो वी विल डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द न्यूज इटसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यू शुड नो दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कृषिफाई, so this is a kind of a social media platform for farmers. जैसे आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, so that is the Facebook Instagram of the farmers and there they get the advice. ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फार्मर्स बैठ के बात कर रहे हैं तुम्हारी भैंस कैसी है, मेरी भैंस अच्छी है. रादर दे आर, इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम दे आर गेटिंग द एडवाइस. ओके, एंड दे कैन ऑल्सो डिस्कस देयर प्रॉब्लम, दैट इज नो कॉन्स्टेंट. ओके, डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड दे कैन गेट द एडवाइस. देन टॉकिंग अबाउट द ई-नाम, सो दिस इज द पैन इंडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे प्रोडक्ट की सेलिंग एंड बाइंग होती है. ट्रेडर्स बाय करते हैं, फार्मर्स अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल करते हैं. सो मिडिल मैन को लिमिट करने के लिए, द नंबर ऑफ मिडिल मैन एंड द मार्जिन दे मेक, उसको लिमिट करने के लिए द दिस पर्टिकुलर ई-नाम पोर्टल इज देयर. बेसिकली न्यूज में क्या हो रखा है, सी द इंटीग्रेशन, व्हाट विल इट डू, सी कृषिफाई इज सोशल ऐप and this is the trading app. So what is the goal of this particular collaboration?
सी अगर कृषिफाई पे कोई फार्मर बोलता है कि ओके आई एम गेटिंग अ लो प्राइस ऑफ फॉर माई प्रोड्यूस, सो कृषिफाई विल एडवाइज ओके गो फॉर द ई नाम। एंड ई नाम पे कोई बोल रहा है कि ओके आई वाज प्लानिंग कि 10 टन प्रोडक्शन हो जाए, आई ओनली गॉट 8, मैं 2 टन कैसे इंक्रीज करूं? सो ई नाम विल सेड कि ओके कॉन्टैक्ट कृषिफाई। तो द बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ ई नाम विल डायरेक्ट कृषिफाई users to Krishify where they can pool the professional for assistance. Okay, यहाँ से Krishify से क्या होगा? Krishify strengthen and relay advisory information, relevant information provided करती है, गवर्नमेंट की स्कीम, फाइनेंशियल लिटरेसी, मार्केटिंग इनसाइट, इन सब के लिए. सो दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ द करंट अफेयर. नाउ डिस्कसिंग द ई नाम, बिकॉज सी ई नाम इट सेल्फ यहाँ की करंट अफेयर से यू विल हैव टू ओनली नो द नेम ऑफ द Krishify. ओके, इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड में से क्या है? ई नाम है, दैट वी विल डिस्कस. सो टॉकिंग अबाउट द ई नाम, वी विल सी अगेन गोइंग बाय द फर्स्ट लाइन. दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ओके, दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम. दैट मीन्स जो ई नाम पोर्टल को डेवलप किया है वो सारा कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज टेकन केयर ऑफ दैट. इसको अब आपने याद रखना है कि इम्प्लीमेंट कौन करता है. सो दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. Okay, then we are talking about again enam. You can see important fact क्या है? See the collaboration that we talked about, the Krishify एंड द ई नाम. सो ई नाम की साइट से नहीं हो रखा है, रादर ई नाम ने एक लॉन्च किया था प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म. दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसी साल लॉन्च हो रखा है ऑन 14 जुलाई 2022. यहाँ पे कृषिफाई इंटीग्रेट हो गया है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, जो कि हो रखा था 2022 में. अब ई नाम कब लॉन्च हो रखा है? सो ई नाम वॉज लॉन्च्ड ऑन 14 अप्रैल 2016. ओके, और ये जो पोर्टल प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च हो रखा है 14 जुलाई 2022. अब इससे क्या होगा? जैसे उत्तराखंड के फार्मर्स हैं, सो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के फार्मर्स जो है वो यूपी में अपने प्रोडक्ट या आंध्र प्रदेश में अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं. सो प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म व्हाट दे विल डू, ये उत्तराखंड का, आंध्र प्रदेश का और जो यूपी का प्लेटफॉर्म्स है, दैट ऑल विल बी ज्वाइंट थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म पोर्टल. ओके, सो ये बेसिक इसका एसेंस था व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म. अगेन इसके लिए भी एक ऐप है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज किसान रथ ऐप. नाम याद कर लो, काफी है, बाकी बैकग्राउंड नहीं पूछ रहे. देन द अदर फैक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द साइट इटसेल्फ इज अभी के लिए 260 नई मंडीज जुड़ गई है. सो दैट मेक अप अराउंड 1260 इनाम मंडी अप टू 20 जून 2022. ठीक है, डेट याद रखनी है. अगर इसमें कोई अपडेट होते हैं, ऑफ कोर्स वी विल इन्फॉर्म यू. देन इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेड वैल्यू, सो ट्रेड वैल्यू हैज वेल क्रॉस द 2 लाख करोड़ मार्जिन. ओके, इतना हो चुका है अप टू 24 मई. अभी तो और बढ़ गया होगा. ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग की, कि ई नाम की वर्किंग कैसे होती है. सी वर्किंग ऑफ ई नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर इज देयर, ही विल रजिस्टर इट सेल्फ ऑफ कोर्स कि ठीक है मैं फार्मर हूँ, आई एम इंटरेस्टेड टू सेल माई प्रोड्यूस. देन व्हाट विल हैपन, वट एवर द सैम्पल, लेट्स से दे आर ट्राइंग टू सेल अ व्हीट और कॉटन, एनीथिंग. ओके, सो अब उसका क्वालिटी असेसमेंट होगा. सो सैम्पलिंग एंड असेसिंग विल बी देयर, कि जो वैरायटी वो बोल रहा है कि वो वैरायटी है कि नहीं है, क्योंकि कुछ वैरायटीज अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं, कुछ वैरायटीज ज़्यादा, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द राइस इटसेल्फ, सो बासमती राइस जो है वो डिमांड में ज़्यादा है रादर देन नॉन बासमती. ठीक है, तो ऐसी वेराइटीज़ का डिफरेंस आता है. सो वेराइटीज चेक होंगे, हमारी सैम्पलिंग होगी, एनालिसिस होगा उसका. देन व्हाट विल हैपन, ऑनलाइन बिडिंग होगी. नाउ वन थिंग टू नो हियर, दिस बिडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज दिस बिडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ई बिडिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हो रही है. देन दिस इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट. आपको भी अगर प्रोडक्ट डायरेक्टली खरीदना है, सो यू कैन गो रजिस्टर योर सेल्फ एंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर. सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉन बायस. ओके, फेयर एंड स्क्वायर काइंड ऑफ बिडिंग इज देयर. देन वेइंग एंड इनवॉइसिंग होगी, कि कितना खरीदना चाह रहा है. लेट्स से यू हैव 10 टन ऑफ प्रोडक्ट, द पर्सन इज सेइंग ओके आई ओनली वांट 8 टन, तो एग्जैक्टली इस वेट को डिफर करेंगे एंड इनवॉइस होगा, बिलिंग होगी. ठीक है, कि कितना इसके हिसाब से कितना ही हैड टू पे, रेट क्या है. ओके, दैट ऑल. देन व्हाट विल हैपन, द ऑनलाइन पेमेंट. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसी टाइम पेमेंट मिल जाएगी थ्रू चलान, इंटरनेट बैंकिंग और आरटीजी नेफ्ट. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसमें यूपीआई भी जुड़ गया है. ठीक है, यहाँ पे भीम ऐप वगैरह भी आ गए हैं. सो यू कैन डू इट फ्रॉम आइदर चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस और यूपीआई, एंड इंस्टेंट पेमेंट विल बी देयर. फार्मर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. इफ दे आर इंटरेस्टेड टू फार्म फॉर द नेक्स्ट सीजन, दे कैन गो फॉर इट. देन एग्जिट गेट, पोस्ट रेट, गुड रिटर्न परमिट, सो गुड एडवांटेज इट इज गिविंग, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है. द फार्मर इज सेलिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द बायर. सो हेयर जो मार्जिन मिलने चाहिए थे, जो ह्यूज मार्जिन जो किसान को, फार्मर को और
सेलर बायर को, दोनों को नुकसान देते हैं, दैट आर कट ऑफ। फार्मर ने थोड़ा सा गेन ज्यादा कर लिया और बायर का थोड़ा सा पैसा बच गया। सो पोस्ट ट्रेड गुड रिटर्न परमिट इज देयर। वन मोर थिंग यू शुड नो दैट 193 कमोडिटीज हैं जो ई नाम में अभी तक जा रही हैं, ठीक है। देन direct online payment we have talked about, transparent e-bidding we have talked about. Moving to the next current affair now. So Union Agriculture Minister has launched NMNF. Now what is this NMNF? That stands for your National Mission for Natural Farming. So इसके लिए portal launch हो रखा है and the name of the portal is NMNF portal. So that is why it is written like that here. Okay. So discussing this particular current affair, news में भी क्या है, you can see the address, this particular address ये पोर्टल है। ओके, दिस वॉज लॉन्च। अगेन क्यों कोई भी पोर्टल हम लॉन्च करते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड कर सके टू द इंटरेस्टेड पीपल। सो कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिशन, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, रिसोर्सेज, प्रोग्रेस, दैट ऑल विल बी डिस्कस। अगेन नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करेंगे, व्हाई पीपल शुड डू नेचुरल फार्मिंग, दैट ऑल विल बी डिस्कस थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल इफ यू ज्वाइन इट। डिस्कसिंग की इसमें से अब इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज योर नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, वी विल डिस्कस अलॉन्ग द लाइन्स। ओके, सो डिस्कसिंग की होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मैनेजमेंट एंड नॉलेज पोर्टल, ये जो है पूरा नाम है, ठीक है। टैगलाइन यू कैन सी, स्वस्थ मिट्टी संपन्न किसान, स्वस्थ माटी संपन्न किसान, इट मीन्स हेल्दी सॉइल संपन्न किसान। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेशनल विजन एंड ऑब्जेक्टिव. So when we talk about the vision, you can see self-sustained, self-generating. These two words you'll have to, these are the buzzword. Okay, so ये दो वर्ड याद रखने हैं, सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ जनरेशन, नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, फ्रीडम फ्रॉम द आउटपुट हार्मफुल फर्टिलाइजर. सो एज वी हैव नो क्या होता है कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर के यूज से द ऑर्गेनिक कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन आवर सॉइल ये डाउन हो जाती है. एंड वी हैव रेड कि अब वो कितनी डाउन हो गई, 0.3% बच रखी है. सो दैट इज वेरी लो, 1% से गिर के 0.3% बच रखी है. सो दैट इज वेरी कंसर्निंग. दैट इज वाई थोड़ा सा वी आर गोइंग फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन, वी आर मूविंग टुवर्ड द नेचुरल फार्मिंग और नेचुरल रेवोल्यूशन. ठीक है, सो वाई, तो दोनों साइड एम करना है. वील हैव टू लुक फॉर द सॉइल टू, वील हैव टू लुक फॉर द फार्मर्स टू. सो सॉइल को हेल्दी रखना है एंड फार्मर्स को इन्हांस करनी है, इनकम को इन्हांस करना है, एंड दे विल हैव टू मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट. ओके, सो नेशनल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एम एट क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डिसेमिनेशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक प्रैक्टिसिंग फार्मर एज द पार्टनर एंड promotion strategy, ensuring the capacity building and continuous hand holding, or the finally attracting the farmer for the natural farming, willing for the merit of the system. So यहाँ हमारा मेन मिशन क्या है, ये पूरी लाइन कह क्या रही है, what we are trying to do here, we are providing the information to farmer that why they should do natural farming, and we are hoping कि okay they will get like okay cool, the natural farming is very interesting and very good for me, so they will go for natural farming. That is the basic essence of this particular portal or the particular scheme that we are talked about. Again, how about, so we will alternate जो traditional farming है, we'll provide them alternate, organic farming, natural farming, permaculture, that kind of alternative we will provide the information on. Okay, we'll popularize the agriculture animal husbandry based model. So what we'll do here, we'll tell them कि okay, keep the animal, keep the farm. What will happen, manure will help you to enrich your farm, वहाँ पैसा बचेगा. And the whatever let's say you are growing the crop, जो भी leaves and the other part non marketable part जो भी है, that you can feed to animal, वहाँ से भी आपको income का second source हो जाएगा, उससे थोड़ा सा risk भी कम हो जाएगा. Okay, so that we are trying to give. Then we'll validate, document देंगे ताकि farmers हो जाए, other you can read and that will help you write a good answer. Okay, so discussing the concept and scenario is what you can see हमारे देश में ऐसा नहीं है, नेचुरल फार्मिंग इज अ न्यू concept. Okay, people do know, some people do know, but since people have seen कि chemical जो farming होती है, the fertilizer based farming is more advantageous, so they are moving to that side. We are trying to bring it back. So okay, so enrich with the modern understanding, ecology, farm sources optimization, so that we are trying to do. Again, agroecology we are trying also to promote. Okay, based on the farming, so crop, tree, livestock, जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं, that we are trying to do. Again, animal sources से the dung and the urine that we get, this will act as the manure. और इनका जो milk and other part है, that you can buy product that you are getting, that you can sell, and ये जो manure you are getting and the urine that you are getting, this will act as a fertilizer. Okay, output of here is input of the farm, so that you can do. What will help based on the biomass recycling,
मास मल्चिंग विल बी देयर, ओके, डंग यूरिन फॉर्मुलेशन विल बी देयर, सॉइल एरिएशन बढ़ जाएगा. एरिएशन कैसा बढ़ेगा? द डंग दैट यू आर यूजिंग उसमें क्या होता है, एयर गैप्स होते हैं, सो एरिएशन दैट विल मेंटेन, सॉइल एरिएशन बढ़ जाएगा. ठीक है, सिंथेटिक केमिकल इनपुट कम होंगे, उसकी वजह से ऑर्गेन एंड आई डू थिंक यू नो कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं दे आर वेल प्राइस्ड. अगर आपके नॉर्मल टमाटर 10 रुपीज़ किलो हैं, सो ऑर्गेनिक टमाटर और द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग इट इज कैन गो फ्रॉम 15 to 25 लेट्स से. सो थोड़ा सा हाई प्राइस्ड होते हैं, तो फार्मर कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट. ओके, some state are doing it, okay, some state had to do implement that. As we know कि पंजाब में जो थोड़ी सी फार्मिंग होती है that is a conventional farming, and the hilly state that we get वहाँ पे थोड़ी सी जो फार्मिंग होती है that comes around the natural farming. Okay, practices what we can do, organic farming one option is there. Okay, diversity, soil health, ये सब चीज़ें maintain होंगी, stress कम हो जाएगा, resources हमारे लंबे टाइम तक चलेंगे. Okay, so that is all you can read. Encouragement of biodiversity will be there क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट whenever you are going for the let's say organic farming और natural farming, so you do opt for crop rotation. ऐसा नहीं है कि राइस उगा रहे हैं तो बार बार राइस उगाएंगे, बिकॉज पेस्ट वगैरह के अटैक से द प्रोडक्शन गेट वेरी लो. सो क्रॉप रोटेशन करते हैं हम लोग, दैट विल इंकरेज द बायोडाइवर्सिटी. सपोर्ट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर बिकॉज यू आर यूजिंग मैन्योर, उसके लिए एनिमल को भी हेल्दी होना पड़ेगा. देन डिस्करेज द एल्गल ब्लूम. ओके, कंजम्पशन हो जा रहा है डायरेक्टली जितनी भी क्रॉप लगा रहे हैं, सिंस यू आर रोटेटिंग द क्रॉप, तो सो सारा का सारा कंज्यूम हो जा रहा है न्यूट्रिशन. सो एल्गल ब्लूम जो है वो थोड़ी सी डिस्करेज हो रही है. सपोर्ट वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हेल्थ. ऑफ कोर्स सी व्हेनेवर यू आर यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर, इस केस में क्या होता है, द फर्टिलाइजर सीप इनटू द वाटर टेबल और जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं दे गेट पोल्यूटेड. सो दैट कैन बी कंट्रोल इफ यू आर यूजिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिकॉज इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन आर रिलीज वेरी स्लोली एंड डायरेक्टली गेट कंज्यूम्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ. सो डिस्करेज environmental exposure to pesticide and chemicals. Again, see this pesticide and chemicals काफी बार क्या होता है, get collected in the plant and can affect the human health itself. Then build the healthy soil. Again, water holding capacity is increased when you're using the manure, so that is a very beneficial. एरिएशन की हम बात कर चुके हैं, एरिएशन इज ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल बायोम. जो सॉइल में बैक्टीरिया एंड ऑल रहते हैं, दे नीड वाटर, दे नीड द एयर, दैट विल बी प्रोवाइडेड व्हेन यू आर यूजिंग द काउ डंग और द मैन्योर इन द सॉइल. देन हेल्प कॉम्बैट द इरोजन. ऑफ कोर्स बायो मल्चिंग से क्या होता है, कवर बन जाता है. ओके, एंड ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग द क्रॉप रोटेशन, तो क्रॉप ऑलरेडी है फील्ड पे, सो दैट होल्ड्स द सॉइल एंड प्रिवेंट द इरोजन. देन फाइटिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. आई थिंक दैट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जब भी आप प्लांट लगा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग रुक रही है, पोल्यूशन रुक रहा है. सो दैट इज okay. So this is the basic concept of the scenario that we talk about the natural farming. Now moving to the natural farming के मूविंग टू द नेचुरल फार्मिंग इटसेल्फ. मिशन की बात नहीं करते, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग? सी ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वन थिंग यू विल हैव टू नो, नो यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, नो यूज ऑफ chemical fertilizers, okay, no use of plant hormones, then no use of GMO, genetically modified organism. ठीक है, genetically modified जो plant होते हैं that you don't have to use. These are some basic condition कि chemical is a big no-no. Okay, genetically modified plants are a big no-no. So these two condition if you can remember. अब chemical कोई भी हो सकते हैं, चाहे pesticide हो, weedicide हो, fertilizers हो, उनको यूज़ नहीं करना है. नेक्स्ट GMO क्रॉप्स को यूज़ नहीं करना है. बेसिक नेचुरल फार्मिंग यही है. उसके अलावा क्या है, इको बैलेंस, डाइवर्सिटी वी हैव टॉक्ड अबाउट. कवरिंग द सॉइल. सो सी क्या होता है इन नेचुरल फार्मिंग व्हाट वी डू, आपने एक बार क्रॉप निकाली है, द हार्वेस्टिंग इज डन, उसके बाद जो बाकी मल्च एंड अदर पार्ट बच जाता है, दैट act as the cover for the soil. So अब क्या होता है, जो भी soil, let's say wind is prevailing in one direction, उस direction में क्या होता है, already a cover is there जिसकी वजह से erosion नहीं होता है. ठीक है, then if the रेन वाटर इज देयर, डायरेक्टली क्या होता है, इम्पैक्ट नहीं होता, द वाटर ड्रॉप इट सेल्फ इज नॉट गोइंग टू द सॉइल, और उसकी वजह से जो स्प्लैश इरोजन है दैट इज कम, वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सॉइल धीरे से ड्रिप, मल्च मटेरियल से वाटर धीरे से ड्रिप करके सॉइल में पहुंचता है, काफ़ी सारा मटेरियल, पानी की स्पीड कम हो जाती है जिसकी वजह से इरोजन अगेन कम होता है. मिनिमल सॉइल डिस्ट्रप्शन एंड वापसा. सो मिनिमल सॉइल डिस्ट्रप्शन का मतलब जो टिलेज होता है दैट इज नॉट वेरी हार्ड, उसमें बहुत सारा टिलेज हम नहीं करते हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस कम होता है. इट हेल्प टू मेंटेन अगेन सॉइल बायोम और इरोजन को प्रिवेंट करता है. पेस्ट मैनेजमेंट बाय नेचुरल मेथड. सो नीम के सारे
कॉम्पोजिशन यूज होते हैं, नीम को पानी के साथ मिलाओ, इस ऑयल के साथ, नेचुरल एसेंशियल ऑयल के साथ मिलाओ, दैट काइंड ऑफ स्टेप दैट वी टेक टू कंट्रोल द पेस्ट. ओके, यूजफुल इंडिजिनस सीड, अगेन GMO क्रॉप्स सीड वी डोंट हैव टू यूज, दैट इज द बेसिक एसेंस. तो कैसे सीड यूज करते हैं, इंडिजिनस वेराइटीज के सीड. ओके, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थ्रू वेरियस फार्म इनपुट. ठीक है, you are using the manure that you are getting, you are using the, let's say, the urine you are getting. उसके बाद if you are going for fisheries, you are using the pond soil in your field, so that all is done. Or you can also, if you are doing for the organic farming, you can also go for the bio fertilizer. It means ऐसे bio microorganism that will enrich your soil. वो खुद nutrient नहीं है, but they are bringing the nutrition. Okay, so that kind of thing you can do in this particular. Again, legume crop you can also go, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं. लेग्यूम क्रॉप में क्या होता है, दे फिक्स द नाइट्रोजन फॉर इट सेल्फ. अगर आप उसके बाद सीरियल उगा रहे हो, यू विल गेट द गुड प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ इट. सो दैट इज द बेसिक एसेंस. इंश्योरिंग द लाइव रूट ऑल अराउंड द ईयर. अब इससे क्या होगा, इंश्योरिंग द लाइव रूट ऑल ईयर, इट मीन्स आपकी जमीन कभी भी खाली नहीं है. सम काइंड ऑफ क्रॉप इज ऑलवेज गोइंग ऑन. ग्रास हो सकती है, लेग्यूम हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन गो फॉर. इससे क्या होगा, द रूट होल्ड द सॉइल, इरोजन कम हो जाएगा. ओके, ठीक है. इसको if we mix with the mulching, that help to prevent erosion very well. No synthetic output, I think that is very self-explanatory. Integration of livestock, it means you can keep the animal with this particular practice, you can keep the fish with this particular practice, you can keep poultry with this pig, you can keep. Okay, so these kind of practice you can do, integrate the livestock into the farming system. That will help you minimize the risk factor and increase the income factor. So this was about the natural farming. I hope everything is clear. We have discussed 3 important current affair and the very important background of this current affair from the static as well as factual part. So that was it for the video. I hope you will like the video. If you like the video, do let me know. If there are any question, do let me know. One thing I haven't discussed it, you will have to tell me about the minister. So we have today discussed about, first of all, the agriculture. So do let me know the name of the agriculture minister and his constituency. Okay, then the minister for fisheries and animal husbandry. So again, दोनों मिनिस्टर्स के नाम इन मिनिमम डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो दिस इज द होमवर्क, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. डू लेट मी नो दैट. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट दैट टू. क्वेरी कोई भी है आज के टॉपिक से रिलेटेड, डू लेट मी नो दैट टू. ARD से रिलेटेड कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो. If you are new here, do remember to join our YouTube channel. If you want the PDF of this particular current affair that we discussed, the PDF of the video that we discussed, so you can join our Telegram channel too. After 24 hours, you will find the video of this particular lecture. So that was it for the video. Thank you so much for attending the video. If you have any query related to the course, the NABARD course, you can write to us or you can contact us. If you want to prepare for NABARD or any regulatory body examination, go check out our website. So thank you so much.